والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي سبحان اللہ. ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں. قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، فقط ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم. آج پہلی بار کلاس والا میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی دعوت پر اور عزیزم رانا محمد تنویر صاحب کی ترغیب پر سرگودا سے سفر کر کے آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری، آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات علماء کرام، اسٹیج پر اور اسٹیج کے دائیں بائیں جلوہ افروز ہیں اور حضرت مفتی صاحب مسند ارشاد پر تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ تفصیلی اور مفصل خطاب تو انہی کا ہوگا. علماء کرام کے سامنے میری حیثیت تو ایک طفل مکتب کی سی ہے. بہرحال بڑے مختصر وقت میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. امید ہے آپ محبت سے سماعت فرما لیں گے. عزیزم حافظ ظفر شہزاد صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو سنا رہے تھے اور ترنم میں سنا رہے تھے. سر کے بعد بے سرے کو سننا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ چونکہ میں زیادہ سما خراشی کا باعث نہیں بنوں گا تو آپ تھوڑا سا وقت تو برداشت کر ہی لیں گے. اور یہ میں جملہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں برداشت کرنے کا، چونکہ آپ سے پہلی ملاقات ہے اور پہلی ملاقات کہیں بوجھ نہ بن جائے اس بات کا میں بھرپور خیال رکھوں گا. رانا محمد تنویر صاحب اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اور ان کی محبت کی وجہ سے ہی اتنا لمبا سفر ہو سکا. جیسے ہی صبح فجر کا وقت ہوتا ہے ایک شخص آتا ہے مسجد میں، لاؤڈ سپیکر آن کرتا ہے اور اذان شروع کر دیتا ہے. اسے مؤذن کہا جاتا ہے، مؤذن کہتے ہیں. اذان کہتے ہیں بلاوے کو، اور مؤذن جو بلاتا ہے. میری حیثیت ایک مؤذن کی سی ہے. میں گلی گلی، نگر نگر، قریہ قریہ، چپا چپا، شہر شہر اور کئی ملکوں میں گھوم کر ایک اذان دیا کرتا ہوں. جو مسجد میں آ کر اذان دیتا ہے وہ عرف عام میں بلاوا ہے عمل کی طرف، وہ بلاوا ہے عمل کی طرف. اور جو میں اذان دیتا ہوں میں بلاتا ہوں عقیدے کی طرف. اور علماء تشریف فرما ہیں، علماء سے پوچھئے گا
کہ عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ عقیدہ نہ ہو اللہ عمل قبول نہیں فرماتے۔ بس اذان کے میں نے فقط 4 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ محبت سے مجھے سماعت کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں دعویٰ کیا، الہکم الہ واحد، الوہیت کا دعویٰ، ربوبیت کا دعویٰ، الہ ہونے کا دعویٰ، معبود ہونے کا دعویٰ، مسجود ہونے کا دعویٰ۔ الہکم الہ واحد، میں الہ ہوں، میں معبود ہوں۔ جتنا بڑا دعویٰ ہو اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے۔ وکلاء حضرات عدالتوں میں دلائل پر جرا کرتے ہیں، دلیل ٹوٹ جائے تو دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے۔ جتنا بڑا دعویٰ ہو اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے۔ دعویٰ الہکم الہ واحد، ساری کائنات کا میں الہ، اور صرف یہاں تک بات نہیں، الہکم الہ واحد، میں الہ اور میں اکیلا الہ، میں معبود اور میں اکیلا معبود۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر شوہ ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، عرشی ہے یا عرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سناتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو وحد سمد ہے، مشکل سے وہ مشکل کو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرے عام جلاتا تو ہے۔ پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ تو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، الہکم الہ واحد، میں الہ، میں اکیلا الہ۔ اب اگر تھوڑی سی اور توجہ ہو آپ کی تو اس جملے میں ایک ہلکا سا غوطہ لگا لو۔ جوانوں تھوڑی سی زبان ہلا دو، اتنے سنگ دل بھی نہ بنو، کچھ تو مربت سیکھو، تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے۔ الہکم الہ واحد، میں اکیلا الہ، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ دیکھ تیرے گاؤں میں، تیرے شہر میں، تیرے ڈیرے پر ایک بھینس بندھی ہے، بھینس کا رنگ کالا، اس کے پیٹ کے اندر میں نے ایک مشین کو فٹ کر دیا، من بین فرش بدن، ایک طرف گوبر بدبودار ہے، ایک طرف خون ہے، لیکن اپنے پیالے پہ نگاہ دوڑا، گٹ گٹ کر کے پی جاتا ہے جسے، اس پیالے پہ پی جانے سے پہلے رک جا، ٹھہر جا، دیکھ تو صحیح، خالص۔ اب جنہیں تو سمجھ آ رہی ہے تھوڑا سا مسکرا دو۔ ہر بات پہ بخیلی اچھی نہیں ہوتی، اور علماء، پھر میں بار بار عرض کروں گا، علماء بیٹھے، علماء سے پوچھیے گا، حضور کا فرمان ہے بخیل بندے کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی بخیل بندے کو۔ اور
जन्नत की खुशबू कई मीलों से आती है, इसका मतलब है ऐसा बंदा जन्नत से बहुत दूर होगा। क्यों हजरत? वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, उलूहियत का दावा, रुबूबियत का दावा, मैं इला, मैं अकेला इला, मैं अकेला मस्जूद, मैं अकेला माबूद। और यहां पर एक जुमला और मेरे जहन में आ गया, अगर थोड़ी सी आप इजाजत दे तो। मैंने वैसे कहा तो ये था राना साहब से भी और हजरत जी से भी कि मैं बड़ा थोड़ा सा वक्त लूंगा, लेकिन नहीं हजरत नहीं है। अच्छा नहीं नहीं, आप अपना वक्त हजरत आप बयान फरमाएंगे, यूं ना करें, ये तो गुस्सा हो रहा है मेरे ख्याल में। अच्छा आप थोड़ा सा बोलेंगे, ये सारा वक्त मेरा मिन्नत करने में लग जाएगा। मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ तौहीद पर, अगर इजाजत हो तो। नाराज तो नहीं बैठे हो? देखिए, आपका घर है, उस घर का एक दाखिली दरवाजा होता है, उससे दाखिल होके आप अंदर तशरीफ लाते हैं। आपकी दुकान है, एक उसका दाखिली दरवाजा है। इस मस्जिद का ये दाखिली दरवाजा है, इससे गुजरकर मैं भी हाजिर हुआ, आप भी तशरीफ लाए। इस्लाम का दाखिली दरवाजा भी है, इस्लाम का दाखिली दरवाजा। अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ये इस्लाम का दाखिली दरवाजा है। आ गए, लेकिन सुनिए, अशहादो, मैं गवाही देता हूं, ये इतना सादा सा लफ्ज है। ये भी वो लफ्ज है जो आपके माहौल में, आपके मुआशरे में बोला जाता है। किसी का खुद केस चल रहा हो तो उससे दोस्त आप पूछते हैं कि तेरा वो केस चल रहा था क्या बना? वो जवाब देता है बनना क्या था, जज ने कहा अगली पेशी पे शहादत है, गवाह लाना। सर हिला दो, अगली पेशी पे गवाह लाना शहादत है। वो दोस्तों के पास आके कहते हैं कि जज ने कहा है गवाह लाना, तो तुम हो ना मेरे गवाह? हाँ हम हैं, क्योंकि वो खुश होता है वहां पर। ये भी कोई काम है कि गवाह लाने हैं, ले आऊंगा। क्रिकेट के मैच पे मेरे गवाह हैं, मैं दस्तरखान सजाता हूं, मेरे गवाह हैं। चाय की प्याली पे मेरे गवाह हैं, ताश के पत्तों पे मेरे गवाह हैं, हुक्के की महफिल सजती है, मेरे गवाह हैं, मैं ले आऊंगा। दोस्त पूछे क्या बना? जज ने कहा गवाह लाना। हो ना मेरे गवाह? हाँ हम हैं। तुम जानते हो ना मैं इस केस में सच्चा हूं? हाँ हम जानते हैं। अदालत मेरे साथ चलोगे ना? हाँ। तो वो कहे कि हम यहां तो तेरे गवाह हैं, अदालत में तेरे साथ नहीं जाते। ईमानदारी से बताओ, आप उन्हें सज्जन कहोगे? खुल के बोलो, खुल के बोलो। क्यों? जहां जरूरत थी वहां से फिर गया, जहां गवाही की जरूरत थी वहां से मुनकिर हो गया, जहां गवाही की जरूरत थी वहां से मुकर गया, यू टर्न ले लिया। ये तो आजकल बोला जाता है लफ्ज। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? फिर गया, मुकर गया। जो जहां जरूरत हो वहां गवाह न बने। तू उसे सज्जन नहीं कहता, तू उसे अपना नहीं कहता। क्या समझ रखा है रब को? घर में, आप मेरी अजान सुनिएगा, घर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर रब की तौहीद का ऐलान ठीक है, लेकिन जहां कोई तौहीद पे हमला आवर हो वहां उसकी तौहीद का गवाह बनना, इसे ईमान कहते हैं। घर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर खत्म नबुव्वत की बात करना ठीक है, लेकिन जहां कोई खत्म नबुव्वत पे डाका डाले वहां खत्म नबुव्वत का गवाह बनना, इसे ईमान कहते हैं।
हातम ताई का नवासा दोस्तों की महफिल में आकर बैठा। इधर हातम ताई का नवासा आकर बैठा, उधर प्यारे आका का नवासा हुसैन आकर बैठ गया। हातम ताई के नवासे ने अपने नाना की सखावत के किस्से छेड़ दिए। मेरा नाना ऐसा सखी था, मेरे नाना का महल था, महल के 8 दरवाजे थे, उसने अपने दर से लेने वालों के लिए 8 दरवाजे दिखा रखे थे। इधर से आके ले लेना, ये बंद हुआ, इधर से आके ले लेना, ये बंद हुआ, इधर से आके ले लेना, ये बंद हुआ, इधर से आके ले लेना। वो जब चुप हुआ, अब हुसैन बोला। हुसैन बोल के कहते हैं, तेरे नाना ने अपनी कौम को लेने के लिए 8 दरवाजे दिखा रखे थे, मेरे नाना ने अपनी उम्मत को लेने के लिए 1 ही दरवाजा दिखा रखा। तेरे नाना ने बता रखा था, ये बंद हुआ, इधर से आ जाना, ये बंद हुआ, इधर से आ जाना। गोया उसने बता दिया था, ये दरवाजा कभी बंद हो सकता है, कभी ये दरवाजा बंद हो सकता है, कभी इस दरवाजे वाले को ऊँग आ सकती है, कभी इस दरवाजे का मुजावर ऐलान कर सकता है कि साल में 1 ही बार खोला जाएगा। और जो मेरे नाना ने दरवाजा दिखाया था, साथ बता दिया था, दिन में आ तेरी मर्जी, रात में आ तेरी मर्जी, सुबह में आ तेरी मर्जी, शाम में आ तेरी मर्जी, सेहत में आ तेरी मर्जी, बीमारी में आ तेरी मर्जी, खुशहाली में आ तेरी मर्जी, तंदुरुस्ती में आ तेरी मर्जी, छोटा है आ, बड़ा है आ, औरत है आ, मर्द है आ, यहाँ है वहीं पर आ। उसके दरबार में आकर जमीने नियार झुकाना तेरा काम है, और तेरे दामन को अपनी रहमतों से भर देना मेरे रब का काम। सुबहान अल्लाह। इसलिए मैं अर्ज करने चला था कि वहदत के भरे जाम पिलाता। अल्लाह फरमाते व इन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा। देख, उस भैंस के पेट में मैंने एक मशीन को फिट कर दिया। एक तरफ गोबर है, एक तरफ सुर्ख रंग का खून है, लेकिन प्याले पे निगाह दौड़ा, खालिशा खालिश। उस पेट में, उस प्याले में, उस दूध में मैंने गोबर की बू को नहीं आने दिया, खून की रंगत को नहीं आने दिया। अल्लाह, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा ये जुमला जाया ना करना, क्लास वालों, मेरा ये जुमला जाया करना दुख होगा। अल्लाह, आप कहना क्या चाहते हैं? भैंस का तज़किरा कुरान में क्यों? उसके पेट में गोबर है, ये तज़किरा कुरान में क्यों? उसके पेट में खून है, ये तज़किरा कुरान में क्यों? अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा उसकीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्शिन बदमिन लबनन खालिसा। देख, जिस तरह मैंने तुझे दूध खालिस दिया है ना, अब अगर तू मेरा बंदा है तो सजदा मुझे खालिस कर। सुभान अल्लाह। मैंने दूध के प्याले में गोबर की बू को नहीं आने दिया। तू सजदा ऐसे कर, उस सजदे में शिर्क की बू न हो। मैंने दूध के प्याले में खून की रंगत को नहीं आने दिया। तू सजदा मुझे ऐसे कर, उसमें बिदत की रंगत न हो। मैंने दूध के प्याले में भैंस की स्याही को नहीं आने दिया। तू सजदा मुझे ऐसे कर, उसमें रस्मों की स्याही ना हो। हाँ, एक और जुमला मेरे ज़हन में आ गया, लेकिन वो बड़ा जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर देता हूँ, बोझ नहीं बनूंगा इंशाअल्लाह आप पर। अल्लाह फरमाते हैं मिन बैने। बाद में मेरे साथ ये ना कहना, अल्लाह मैं तो बड़ा मजबूर था, मेरे इर्दा गिर्द तो बड़े गंदगी के अड्डे थे, मैं तो उनकी वजह से मजबूर था, मैं क्या करता, फंसा हुआ था। अल्लाह फरमाते हैं मिन बैने। देख तो सही, दूध किन गंदगियों में फंसा हुआ था? कहीं साइड से नहीं था, साइड से नहीं तुझे दिया। मिन बैने, गोबर और खून के दरमियान था। तुझे दूध का लुत्फ आया ही तब जब हर गंदगी से निकाल के खालिस तुझे दिया। मेरी भी रजा आएगी ही तब जब हर गंदगी से निकल कर खालिस मुझे खुदा से। बात लंबी हो जाएगी। दावा उलूहियत का, साहिबान तवज्जो है मेरी जानिब? बात समझ आ रही है? दावा उलूहियत का अल्लाह दलील क्या है? अल्लाह फरमाते हैं इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द
वख्तिलाफिल लैल वन नहार वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर। जमीन और आसमान को देखो मैं समझ आऊंगा। वख्तिलाफिल लैल वन नहार, दिन के आने रात के जाने, रात के आने दिन के जाने को देखो मैं समझ आऊंगा। वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर, पानी को देखो, पानी को देखो मैं समझ आऊंगा। मैंने इतना लतीफ बनाया है पानी को, इतना लतीफ है, इतना नाजुक है कि नदी में, नहर में खड़े होकर यूं मुट्ठी में लेना चाहो आपकी मुट्ठी में नहीं आएगा, लेकिन उसकी लताफत को मैंने पावर कैसी अता कर दी कि उसके ऊपर जमीन को टिका दिया। इस पानी को देखो मैं समझ आऊंगा। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैल वन नहार। साहिबान तवज्जो, मैंने अर्ज किया कि मैंने सिर्फ 4 लफ्ज पेश करने आपकी खिदमत में, 2 मैंने कर दिए। दावा उलूहियत का, मुफ्ती अवैस साहब, दलील इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। दूसरा दावा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा महबूब रसूल है, मेरा महबूब, और सिर्फ एक रसूल की बात नहीं, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल, रसूल नहीं अर रसूल। हाय हाय हाय, औखी होगी बात, चलो कोई बात नहीं, काजी है तो औखा नहीं, लेकिन बात भी औखी तो नहीं किया करता, सौखी सी करता है। मैं तो तालिब इल्मों को भी खादिम हूं। अल्लाह फरमाते रसूल नहीं अर रसूल, ये नहीं फरमाया क़द जाअकुम रसूल, नहीं क़द जाअकुमुर रसूल। रसूल पहले आते रहे, ये रसूलों का रसूल है। नबी पहले आते रहे, ये नबियों का नबी है। पैगंबर पहले आते रहे, ये पैगंबरों का पैगंबर है। रसूल नहीं अर रसूल। जैसे इंग्लिश में किसी लफ्ज से पहले THE दा लग जाए माना खास हो जाता है, अरबी में किसी लफ्ज से पहले अलिफ लाम लग जाए माना खास हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं रसूल नहीं अर रसूल आ गया। आने वाले पहले आते रहे, लेकिन अब वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए बेताब जिनके लिए सारा जमाना था, वो आए मुस्तरिद थी जिनके लिए वादिये बता, वो आए जिनकी बशारत दे गए हजरत ईसा, वो आए जिनके दम से अर्श आज़म पर उजाला था। अरे लोगों, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसा। रसूल नहीं अब रसूल आ गया, मेरा प्यारा आ गया, मेरा हबीब आ गया, मेरा महबूब आ गया, आमना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम आ गया, सिद्दीक का यार आ गया, बिलाल का गमखार आ गया। वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दों और रहमत का छाला, वो आदम तईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमीन के हंसी सब नजारे गवाह है। वो आया है जिसने जहां को संभाला, वो सबकी नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर वाला, तो समझे तो कोई उसे होश वाला। वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तकवीम आसन में सबसे निराला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा। वो इज्जत में अव्वल, अज़मत में अव्वल, शौकत में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल। यूसुफ से पहले, सालेह से पहले, यहया से पहले वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है। कौन आया? वो किसरा के किंगरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। जमाले मोहल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबूवत का ताला, वो मकसूद कौन मकान आ गया है। हिजा से वो सूए फरान आ गया है, रिवायत बताने हसान आ गया है, खुदा का ज़मीन पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है। सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह।
नबुव्वत का ताला। अब कयामत तो आ सकती है, कोई नबी नहीं आ सकता। बोलिए, खुश होके बोलो, खुश होके बोलो। कयामत तो आ सकती है लेकिन कोई नबी नहीं आ सकता। अल्लाह ने मेरे आका के सर पर खत्म नबुव्वत का ताज सजाया है। अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरे आका आखिरी नबी हैं। जो पहले आए वो सिर्फ नबी, आका नबियों के नबी। जो पहले आए वो सिर्फ रसूल, आका रसूलों के रसूल। जो पहले आए वो सिर्फ पैगंबर, आका पैगंबरों के पैगंबर। जो पहले आए उनके लिए सिर्फ नबूवत, आका के लिए खत्म नबूवत। जो पहले आए उनकी नबूवत महदूद, आका की नबूवत लामहदूद। जो पहले आए उनकी नबूवत तो फैली, आका की नबूवत ज़ाती। जो पहले आए उनकी नबूवत के बाद नबूवत, आका की नबूवत के बाद क़यामत। जो पहले आए उनके लिए किताबुल्लाह, आका के लिए कलामुल्लाह। जो पहले आए उनका मेराज फर्श पर, आका का मेराज सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी। जिसका कौनैन में कोई शानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंदोर बाला हमारा नबी। जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्श पासे दरिक्षा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी। जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया आ गया आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा। भूमि पटकी होगी सारी मखलूक को, जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों पत्थरों, जब से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा। दिल की राहत आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। है नबूवत के तारे तो सारे नबी, जान सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। वो बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका और मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक का आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक का आएगा, अब क़यामत तलक है, क़यामत तलक है, क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागी जो सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुदस्सर कहा, वो दुआ भी पुकारा हमारा। सुभान अल्लाह। बाद लोग मनु दिल विच दाद देंदे, हालांकि मैं जिक्र बिल जहर दा कायल हां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रशांत नहीं बैठे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरा दावा मुहम्मदुर रसूल। मेरी गल याद है तुहानू? दूसरा दावा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो, उलूहियत का दावा, दलील ज़मीन व आसमान। बड़ी तवज्जो, मैं वक्त इंशाअल्लाह ज़ाया नहीं करूंगा आपका। दूसरा दावा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, महबूब की रिसालत का दावा। अल्लाह इसकी दलील क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना मा अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीबाहुम फी वजूहिहिम मिन अथर सुजूद। ज़मीन व आसमान को देखो, मैं समझ आऊंगा। मेरे महबूब के यारों को देखो, महबूब की रिसालत समझ आऊंगा।
آپ نے بڑی ہولی سی سبحان اللہ کہی، اور کئی لوگ اس وجہ سے بھی نہیں بولتے حضرت کہ یہ گل منو پہلے پتہ ہے. توجہ، منو بھی 18-20 سال ہو گئے سٹیج تے آیا. کئی بندے اس واسطے بھی نہیں، میں بھی ساری زندگی چہرے ہی پڑھے اور کام کی کیتا ہے. کئی بندے اس واسطے بھی نہیں بولتے بھی یہ گل تے منو پہلے، یہ گل منو بھی پتہ ہے بھی تینوں پتہ ہے. میں کہ میری حیثیت ہے مؤذن علی، ہائے ہائے ہائے، میری حیثیت ہے انہیں جڑی اذان دینی ہے وہ تینوں پتہ ہے حضرت، انہیں جڑی اذان دینی ہے تو پتہ ہے. لیکن حضور فرماندے ہیں جڑی اذان دے اس وقت چپ بھی کر جایا کر تے او دے نال نال او لفظ دہرایا کر. کیا کر میں اذان دے رہے ہیں عقیدے دی. صاحبان توجہ ہے. دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ، محبوب دی رسالت میں ہون نچوڑ تہاڈے دامن وچ پیش کرن لگا. صدائے عشق ہوں، نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں. زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں. الوہیت پر دلیل بنایا زمین و آسمان کو. اس انداز سے سنیے گا کہ یہ بات آپ آگے سنا سکیں. جیسا ہی نئے مہمان تشریف لائیں گے رانا صاحب اور جو وہاں پہ کھڑے ہیں حضرات، مزال ہے جی سنن میری گل. جیسا ہی نئے مہمان تشریف لائیں گے وہ ابھی جوتے نہیں اتاریں گے، میں مائک چھوڑ دوں گا انشاءاللہ. آپ خاطر جمع رکھیے اس بات کو. نہیں حضرت، مہمان کے اکرام میں یہ ہونا چاہیے. اب آپ سنیں گے جی، مجھے میری بات سنیں گے. میں بس نچوڑ رکھنے لگا ہوں، میں جا رہا ہوں انشاءاللہ، جلدی جلدی آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں. ہاں حضرت کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں، اور جو کہا کرتے تھے کہ نہیں گھبرانا وہ خود گھبرو کے چلے گئے. کیا خیال ہے؟ آج کل تو وہ خود گھبرائے ہوئے. توجہ، بات پھر کہیں اور نکل جائے گی. الوہیت پر زمین و آسمان کو دلیل بنایا، رسالت پر صحابہ کو دلیل بنایا. نہیں، ذوق والے کے لیے جملہ یوں عرض کرتا ہوں، الوہیت پر دلیل سورج، چاند، تارے، پانی، ہوا، فضا، خلا. رسالت پر دلیل ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، طلحہ، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو ہریرہ. دلیل ٹوٹ جائے دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے، دلیل ختم ہو جائے دعویٰ ختم ہو جاتا ہے. میں یہ آل نظر کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ میرا استدلال ضائع نہ کیجئے گا. یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، خطابوں میں بھی نہیں ملے گا. صوفی جی سر نہ ہلاؤ نا، زبان ہلاؤ تھوڑی جی. میرا یہ استدلال ضائع نہ کرنا، دکھی ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور آپ بھی میرا کیا کر سکتے ہیں. میں کو ووٹ لینے تھوڑی آیا ہوں. ووٹ تو آپ نے دینے اسے ہیں جسے پہلے وعدہ کرنا ہے. وعدہ اس سے کہا کرتے ہیں کہ ووٹ تنو دینے نے 10 نالیاں پکیاں کرائیں گا. پاکستانی عوام کے ووٹ کا معیار دیکھو. میرے بوئے تو میٹر لوائیں گا، ایویں گل ہے نا. میرے بچے نو نوکری دلائیں گا، میرا بندہ تھانیوں چھڑا کے لے آئیں گا. اے معیار. ووٹ واسطے تو آ گئے، ووٹ تنو دینے نے. کنوں دینے نے؟ اتھے بہ کے انتظار کر جدھر برادری نے فیصلہ کی. بجلی گئی ہے یا تسی گئے ہو؟ میرے جے لفظ رکے نے تو تاں گل کرو.
साहिबान तवज्जो है। जिधर साडे टब्बर ने फैसला किया वोट उधर देने ने, मैं न किसी दे वोट तरोड़ने ने न किसी वास्ते मंगने ने। एक राय तुहानू देना जे लै लो ते लै लोगे। वोट कव्यो भी ठीक है तेनू देने ने, ये नहीं उन्होंने कहना भी तू नाली पक्की करानी है, मीटर लवाना है नहीं लवाना, ये बाद दी गल्लां ने। उन्होंने ले आओ मसीत विच वुजू करा के कुरान सामने रखो, को दो चार गल्लां तेरे को पुछनियां ने, वोट तेनू भी देने भी ने ते मंग के भी तेनू देने ने। पहली गल है सिर्फ ये दस रब नू की जानदा, रब दे बारे की अकीदा तेरा, हुजूर नू किन्ना को जानना है। अव्वल ते काम इत्थे ही हो जाना है मुक, ते जे ना मुके ते काजी दा एक लफ्ज ते याद रखोगे इंशाअल्लाह, ते जेड़ा मेरा इस लफ्ज सुन के ना बोलिया मनु दुखी होना और की कर सकदा मैं। पहली गल है भी रब नू किन्ना को जानना है, हुजूर दी खत्मे नबुव्वत ते किन्ना को ईमान है तेरा, इस हस्ते कि तू मेरा नुमाइंदा है। कल असम्बली में जदों गल होनी है उत्थे मैं नहीं बोल सकदा, उत्थे बोलेगा तू, ताकि मनु डंडे ले आके रोडा ते ना आना पवे। मेरी गल समझ आई है नहीं आई? हाँ, उत्थे तू बोलना है। पहली गल है भी रब नू किन्ना जानना है, मेरी गल समझ आ रही? हुजूर दे बारे की अकीदा है। ते अगला सवाल है पूछना है अबू बकर नू किन्ना को जानना। मेरी गल समझ आ रही को नहीं आ रही? खैर ए विच कैवें इश्तिहार आ गया, गल फिर किते और निकल जाएगी ते मेहमान उधर भी इंतजार करते हैं पे। हजरत अगर से कहा भी मैं अपना टाइम तन्नू दिता, लेकिन मैं अपने टाइम विचों अद्धा टाइम हजरत नू दिता। दोस्तों मेरे हाल तवज्जो है। मैंने अर्ज किया दलील टूट जाए दावा, मैं कुरान से आपकी खिदमत में अकीदा रख रहा हूं, मेरे इस लफ्ज को जाया ना करना। अब दाएं मैं देखेंगे भी तो मैं ये समझूंगा कि चलो ठीक है, सुनने का आपका अंदाज ही यही है। मैं हूं तो वैसे हसास तबीयत का बंदा, लेकिन आंखें बंद करके सुना देता हूं। आपने आजकल तो डिजिटल कलाक आ गए मसाजिद में। कुछ अर्सा पहले की बात है, ये साल 1.5 साल 2 साल पहले की बात है, मसाजिद में एक चार्ट लगा होता था जिस पे लिखा होता था दायमी नक्शा। जी दायमी नक्शा क्या मतलब? जो आज वक्त है ना तुलू का, अगले बरस इस तारीख को यही वक्त होगा। जो आज वक्त है ना जवाल का, अगले बरस इस तारीख को। जो आज वक्त है गुरूब का, अगले बरस इस तारीख को। ये क्यों उन्होंने लिखा दायमी नक्शा? इसलिए कि जहां मेरे रब ने सूरज चांद तारों को मुतय्यन कर दिया है, वो बगावत नहीं कर सकते। मैंने एड्रेस दो, मैं घर आके समझावा तो। वो नहीं बगावत कर सकते। अगर चांद सूरज तारों ने, मैंने अर्ज किया मेरा इस्तदलाल है, मेरी मेहनतें जाया ना करना। अगर चांद सूरज तारों ने रब की बगावत करना होती, अल्लाह उलूहियत की दलील न बनाता। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। अगर चांद तारों ने रब की बगावत करना होती, अल्लाह उलूहियत की दलील न बनाता। अगर सहाबा ने आका के बाद गुमराह होना होता, अल्लाह महबूब की रिसालत की दलील
मेरी बात समझ आई साहिबान? और आपको भी आई? सुभान अल्लाह। वहाबी भी कहन जरा सुभान अल्लाह। मैं भी चेहरे ही पढ़े ने अज तक सुभान अल्लाह। हुण इन्ना वक्त नहीं भी मैं दसा, वर्दी वेख के पता चल जाता है बंदा केड़े महकमे दा है। हाँ, क्या ख्याल है हजरत? अगर चांद तारों ने बगावत करना होती अल्लाह उलूहियत की दलील न बनाता। अगर सहाबा ने आका के बाद गुमराह होना होता अल्लाह महबूब की रिसालत की दलील न बनाता। इसलिए कि जितना बड़ा दावा हो उतनी बड़ी दलील होती है। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मदले अरबाब सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की फकर का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग में जलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीर सहाबा, अफसन हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के वकील सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के वकील सहाबा, तौहीद के दाई सहाबा, आका के सिपाही सहाबा, सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई सहाबा, रहमान मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का अलियार ने खुद तस्लीम किया आला मियार सहाबा का। मैं अलीम करूंगा माशर तक रूही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही मैं हूँ गुलजार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के सख्त सीने पर हर हर आसार सहाबा का। जावत बदर और खैबर में कुछ देगी शाह सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को नारा चार सहाबा का। नाराए तकबीर, सलावते रास्ता, सलावते रास्ता, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह। वो घंटा एक में मेहनत की है ते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी इस दौर जदों पेट्रोल 180 रुपए दा। सुभान अल्लाह। चलो जिमें हजरत नू समझ आई अल्लाह करे सारियां नू इंज ही समझ आए। वैसे भी मैनू दसिया इन्होंने ते कुछ तुहाडे चेहरे भी दसदे ने पे भी माशाअल्लाह सारे मकतबा फिक्र वाले लोग आए। बोलते नहीं। मैं ज्यादा एक सिर्फ गल आ गई है अर्ज करदा। मकतबा अहले हदीस दे एक बुजुर्ग गुजरे ने हजरत रोबड़ी रहमतुल्लाह। डरे बैठे हो, मैं गल कर रहा, बोलो जरा तुसीं मेरे नाल। वो किते जितने भी हजरात जड़े सफर करते रहंदे ने, किते पेट्रोल पंप ते मसीत आ गई उत्थे नमाज पढ़ ली, किते कोई बाजार दी मसीत आ गई उत्थे नमाज पढ़ ली। जेड़े सफर ते रहंदे ने हजरात सारे, ओ हजरत किते रश वाली मस्जिद विच नमाज पढ़ने वास्ते रुके तो इंतहाई रश वाली मस्जिद, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं जा। उन्होंने ना हमें नमाज पढ़ के ते ऐनक रखी, ऐनक रख दी। और एक साहब गुजरे, उदी लगी ठोकर ते उन्हें मुड़ के तकिया ते वो ऐनक थोड़ी जी ना डिंगी जी हो गई, टेढ़ी हो गई। ते उन्हें हुण हजरत वाल तकिया तो जिवें मैं तुहानूं दस्सिया भी वर्दी तो पता लग जाता है, महकमा पता लग गया भी को हजरत ने। उन्हें जल्दी जल्दी ऐनक चुकी ते हजरत नूं देख के कहा, हजरत मैं माजरत चाहना, मैं तकिया नहीं। हजरत रोबड़ी रहमतुल्लाह भी मौज च बैठे सन। उन्होंने कहा भी चलो ठीक है माजरत तेरी कबूल है, पर लगता है तू देवबंदी है। तू उन्हें वो बह गया, उन्हें कहा मैं वाकई देवबंदी हाँ, पर तुहानू किवें पता लगा? वो कहंदे ने भी जे हुंदा ना बरेलवी उहदे पैर नाल टुटदी ते उन्होंने पता लग जाता है हजरत ने। उन्हें सिर्फ माजरत नहीं करनी, उन्हें मैनू नवी लैके देनी। तुसी हो जरा मोतदिल जे, न बहुते नरम ते न बहुते सख्त। और तुसी समझो या ना समझो, मेरा ये जुमला भी एक तकरीर है। तुसी हो मोतदिल जे, न बहुते नरम ते न बहुते सख्त।
نہیں ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ بھی میں گھنٹہ ایک اور لاواں صاحبان توجہ ہے اگر کہنے جے بریلوی ہوندا تے انہیں منے نوی لے کے دینی ہے تسی ذرا درمیان وچوں تو کیا وچ چلو میں معذرت تے جے ہوندا نا میرا ٹبر انہیں کہنا تو راج رکھی کیوں پر میں اٹھن لگا انشاءاللہ سبحان اللہ رسالت پر دلیل بنایا صحابہ کو. او بولو یارا بولو رسالت پر دلیل بنایا اور یہ یوں ہی نہیں بنایا. میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور بڑی توجہ سے اور خصوصاً آج کے دور کے لیے اہمیت رکھتا ہے وہ جملہ. صحابہ کو یوں ہی دلیل نہیں بنایا. آج میں اور تم جو نمازی ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے محنت ہے صحابہ کی. ہاں جو میرے اور تیرے چہرے پہ داڑھی ہے سر پہ پگڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے محنت ہے صحابہ کی. اور میں اس پر کوئی لمبی چوڑی دلیل نہیں دوں گا. میں تو زیادہ تقریر کو طول دیا ہی نہیں کرتا. جھلکیوں میں بات کہنے کا عادی ہوں. پیارے آقا جب بدر کے میدان میں ہیں خیمے کے اندر ہیں اور غلام کو کہا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا. ہائے 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 کسی کو صحابہ کو کہا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو کسی کو اندر نہ آنے دینا. میں یار نال دو چار گلاں کر لاں تے پھر مڑ کے کیا جے ابو بکر آیا نا تے انہوں روکی نا. ہائے 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 سبحان اللہ. حضرت میرا وعدہ ہے یا بھی جی میں حضرت تشریف لے آن گے حضرت تشریف لے آئے تو میں انشاءاللہ بس کلوز کر رہے ہیں. نہیں بہت لمبی ہو جائے گی پھر کبھی موضوع سے ہٹ جائے گی. توجہ ہے دوستو توجہ ہے صاحبان. میں بس اٹھنے لگا ہوں بالکل اٹھنے لگا ہوں. یہ آخری منٹ میں انشاءاللہ اٹھ رہا ہوں. پیارے آقا اس لمحے میں جب رب سے مانگ رہے ہیں تو وہ جملہ میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں ادا کر رہا ہوں. پیارے آقا یہ نہیں فرما رہے اللہ یہ جو میں 313 لے کے آیا ہوں نا یہ کمائی لے کے آیا ہوں محنت لے کے آیا ہوں. حضور نے یہ نہیں فرماتے اللہ اگر میں نہ رہا نہیں فرمایا اللہ اگر یہ نہ رہے اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. گویا حضور نے بتا دیا اسلام کی بقا صحابہ ہے اسلام کی زندگی صحابہ ہیں. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ. ملا ہے جو لائے بے عیب ہم کو کلام خدا بنات صحابہ. وسعت دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.